Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program. Up to last lecture, we discussed about integration, basic definition of integration, मतलब क्या है, कितना important है और अपन को कहाँ like possibly use हो सकता है. So it has lot of application and then we discussed about some rules. That is basically one rule only we talked about, that is power rule. तो power rule में था basically integration of x raised to power n dx और ये अपन ने देखा था it's n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Just one point here actually, that n should not be equal to 1 or minus 1 here, because you can see अगर ये n की वैल्यू -1 यहाँ पे हो जाती है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. सो बस ये उस केस के लिए वैलिड नहीं होता है. सो n वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू -1. दैट इज जस्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस फार्मूला. तो फिर अपन ने देखा कि ये एक बेसिक का इंटीग्रेशन का फार्मूला है, सबसे ईजी. एंड देन वी did some application of this, some problems we solved about it, and I gave you some problems for homework. I hope you have tried them. I'm just writing the answer for those. So this was first problem, y is equal to x square. Of course, only rule we have discussed is that power rule. So all these problems will be solved by only that power rule. तो इसको solve करेंगे तो इसको लिखते हैं अपन integral y dx, that is equal to integral x square into dx, and by this power rule I can write this is equal to x raised to power n is here 2, so it's x raised to power 2 plus 1 divided by 2 plus 1 plus c. तो ये solve हो गए x cube by 3 plus c, right? Similarly for this case, now I can write directly integral y dx. Remember the steps. This is the function originally given. Sometime you will be given in this form also, then directly you can go for this step. अगर ये इस तरह से दिखा है then you first go for this step, then this step. तो यहाँ पर अभी अपन क्या करेंगे, this is x raised to power -4/7 into dx. Only difference here, power this is -4/7, so nothing, same exactly same way we can apply it. X raised to power -4/7 plus 1 divided by -4/7 plus 1 plus c. तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, x पावर 3/7 डिवाइडेड बाई, ये भी हो जाएगा 3/7, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं by 3 plus c. So this is the integration of this function. Here this is y equal to x raised to power pi. The integration of this is x raised to power pi into dx. यहाँ देख सकते हैं pi is also a constant number, is it? So we don't have to like substitute the value, we can simply go in terms of pi also. तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, again by power rule it's pi plus 1 divided by pi plus 1 and plus c. So this is the integration of this function, and for this exactly we can go integral x power √3 into dx. ये भी हो जाएगा x पावर √3 plus 1 divided by √3 plus 1 and plus c, right? तो ये हो गया अपना फोर्थ का इंटीग्रेशन. फॉर फिफ्थ पार्ट, इसके लिए अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल y dx फिफ्थ के लिए x raised to power -3/5 dx. तो ये हो जाएगा सेम पावर रूल से x पावर -3/5 plus 1 divided by -3/5 plus 1, right? So you can further simplify it. तो ये आ जाएगा x पावर, ये कितना हो जाएगा 2/3, और ये आ जाएगा 2/5, and here it will be in denominator 2/5. तो इसको 5 को ऊपर ले जा करके I can write it 5/2 into x raised to power 2/5 plus 1. तो ये थे आपके problems that I gave you in the last class. So this is just basic or simple application of power rule. Let's see some more formulas, more rules for integration. So let me erase them first. So next is a rule, you can write it to integration
ऑफ, यू कैन राइट इट कांस्टेंट फंक्शन। अपने देखा था कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, जीरो। तो इंटीग्रेशन इट्स जस्ट लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ y इक्वल टू सम कांस्टेंट लेट्स से k, इज इट, वेयर k इज कांस्टेंट। देखो इसका इंटीग्रेशन तो एक्चुअली में फॉर्मूला दे रहता है इंटीग्रल y dx इक्वल टू इंटीग्रल दिस इज k dx। सिंपली k को अपन बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रल ऑफ dx, इसको आप लिख सकते हो बेसिकली दिस इज k आउट, और यहाँ पे क्या है 1 dx, आई कैन राइट इट दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाई dx, और 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 इज इक्वल टू x रेज टू पावर 0, दिस इज आल्सो 1 इंटू dx। तो यहाँ पर भी पावर रूल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा k एज इट इज इन मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हो जाएगा x रेज टू पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 एंड प्लस c। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व होकर के आ जाता है दिस इज k x प्लस c। तो योर रूल फाइनल फॉर्मूला इज इंटीग्रल कांस्टेंट k dx इज सिंपली दैट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई x प्लस c, राइट। और इसी में मैं जनरल टर्म्स में आई कैन आल्सो राइट इंटीग्रल ऑफ dx। तो dx को भी क्या है एग्जैक्टली x पावर 0 इंटू dx, इन एग्जैक्टली सेम वे अगर इसको भी अपन सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा पावर 0 इंटू डी एक्स, देन पावर रूल, सो दिस इज x रेज टू पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ से अपने पास आ जाता है इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x प्लस c। रिमेंबर दिस केस आल्सो, राइट। तो इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज दैट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई x प्लस c। इंटीग्रल dx इज इक्वल टू सिंपली x प्लस c। जो नेक्स्ट केस है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस, बट लेट मी राइट इट इंटीग्रेशन और कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन, या फिर अपन इसको लिखते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। यहां पर है कि मतलब y इक्वल टू अगर अपना एक f ऑफ x एक फंक्शन है, यही ए फंक्शन अगर कुछ केस कांस्टेंट k से मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे कैसे चीज़ें डिफर कर जाएंगी। तो y इक्वल टू k एफ एक्स है उसका डिपेंडिंग ऑन, अभी क्योंकि अपन ने सभी रूल्स देखे नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन दिस फंक्शन हम इसका इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन पावर रूल है तो पावर रूल वाला रूल्स लगा करके यूज कर सकते हैं और इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा है तो वो अभी अपन आगे देख लेंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेंशन हियर इज दिस फैक्टर k। तो इसके लिए क्या करना है, तो मैं बेसिकली इन दिस रूल यहाँ पे अपन नॉर्मल सिंपल इंटीग्रल y dx और दिस विल बी y इज k टाइम्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो k को सिंपली बाहर ले लेना है, k इज सिंपली आउट, और इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी एक्स डिपेंडिंग ऑन दिस फंक्शन के फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, बेस्ड ऑन दैट रूल वी कैन इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो और ये जो फैक्टर है उसको एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में रख देंगे तो अपना आंसर आ जाता है यहाँ पे कि मैं मान लेता हूं कि इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके एक नया फंक्शन कुछ कैपिटल एफ एक्स आ जा रहा है, तो दिस विल बी लाइक कैपिटल एफ एक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, है ना, इसको एज इट इज k से मल्टीप्लाई करके रखेंगे और प्लस c। सो दिस विल बी योर आंसर। सो दिस इज योर कांस्टेंट मल्टीपल रूल और कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन रूल आल्सो। लेट्स सी सम केसेस फॉर दिस एक्चुअली। तो यहाँ पे जैसे अपन देख सकते हैं सिंपली y इज इक्वल टू इफ आई राइट 5, यहाँ का इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, राइट। सो इंटीग्रेशन यहाँ अगर पर भी अपन को सॉल्व करना है ऑफ y, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx। बाकी ये स्टेप सबके लिए सेम है और थोड़े टाइम बाद आप डायरेक्टली ये स्टेप लिखने की बजाय यहाँ ये भी लिख सकते हो, y की जो वैल्यू है दैट इज 5 इंटू डी एक्स, यू कैन राइट दिस वन आल्सो, दैट इज ओके। दिस इज जस्ट टू गो स्टेप बाय स्टेप सो यू आर फैमिलियर एंड गेट लाइक ये तुम्हें समझ में आ जाए प्रॉपरली। सो इन दिस केस यहाँ पर क्या है, अगेन दिस इज कांस्टेंट फैक्टर, इसको बाहर ले लेंगे एज इट इज और इंटीग्रल ये क्या हो जाएगा dx,
और dx का इंटीग्रेशन अपन को पता है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, x. So this can be written as 5 times integration of dx is x plus c, and we can write this is equal to 5x plus c. तो integral of 5 dx is equal to this. Simple, right? Similarly, if I take example y is equal to let's say 2x square, ये मेरा एक फंक्शन है ना, सिंपल वाला. अभी यहां पर भी पूछा गया है फाइंड इट्स इंटीग्रेशन, फाइंड इट्स इंटीग्रेशन. तो यहां पर भी क्या करेंगे, बेसिक रूल, वी विल अगेन गो इंटीग्रल ऑफ y dx. सो इंटीग्रल y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर dx. यहां पर भी 2 एक कांस्टेंट फैक्टर है, वी कैन सिंपली टेक इट आउट, 2 इंटीग्रल x स्क्वायर इंटू dx. अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, पावर रूल है. तो यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 को 2 एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन x पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 एंड प्लस c. तो ये कितना हो गया, 2 इंटू एक्स पावर 3 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c. तो ये आ गया अपना इंटीग्रेशन. तो बेसिक है, आई थिंक लाइक इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए. इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो उसको x प्लस सी लिख देंगे, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी हो जाता है. कांस्टेंट फैक्टर है तो जो फंक्शन है, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर फंक्शन है और 2 क्या है, कांस्टेंट फैक्टर, तो 2 को अपन सिंपली बाहर रख लेंगे और x स्क्वायर. अब यहाँ पे तो x स्क्वायर क्या है, सिंपल पावर रूल से लग रहा है. आगे अगर कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है तो वो हम उसका रूल पढ़ लेंगे, उसके हिसाब से इंटीग्रेट कर देंगे. अभी के लिए यहाँ पे पावर रूल वाला फंक्शन है, ये अपन को आता है, तो इसका एज इट इज इंटीग्रेशन कर देंगे और इसको 2 को वहीं रहने देंगे, n प्लस c. सो दैट इज हाउ वी आर गेटिंग दिस इंटीग्रेशन, राइट? सो लेट मी रेज इट. Next rule is that is a fourth one, sum and difference rule. सम एंड डिफरेंस रूल में यहां पर भी वही कि अपना जो फंक्शन था y इक्वल टू, पहले एक ही था, अब यहाँ पे ये y है, उसमें 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म कितनी भी हो सकती हैं. तो जस्ट इट कैन बी लाइक fx, एक टर्म प्लस माइनस एनीथिंग, इट कैन बी लेट्स से gx. इस तरह का है, या ये 2 फंक्शन का या 2 टर्म का एडिशन, 2 टर्म का सब्ट्रैक्शन, इट कैन बी एनीथिंग. सो दैट इज बेसिकली योर सम एंड डिफरेंस. अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं 2 टर्म से. दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, तो ये अपना फंक्शन है, यहाँ पर भी अपन को इंटीग्रेशन फाइंड करना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल y dx, इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इंटीग्रल y की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, दिस इज fx प्लस माइनस gx इंटू dx. अब ये रूल क्या है, ये 2 फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सिंपल सा है. यहाँ पे करना क्या है, हमें इस फंक्शन को एज इट इज, इस फंक्शन को लाइक दोनों का सेपरेटली इंटीग्रेशन करना है. तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन को इसके लिए और इंटीग्रेशन को इसके लिए. सो इट कैन बी बेसिकली रिटन एज fx इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, प्लस माइनस जो भी यहाँ पे दे रखा हो तुम्हें, एंड इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू dx. आई थिंक दिस शुड बी सिंपल क्लियर कि यहाँ पे 2 फंक्शन का क्या है, y क्या दे रखा है, 2 फंक्शन का एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. तो लाइक नॉर्मल अपन रूल से जाते हैं तो वी कैन राइट दिस वे. और यहाँ पे जो रूल कहता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसको हम सेपरेटली डील कर सकते हैं, इसका अलग से इंटीग्रेशन और इसका अलग से इंटीग्रेशन. जो बीच में जो भी साइन है उसको अपन एज इट इज रहने देंगे. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन को, डिपेंडिंग ऑन कि fx की वैल्यू क्या दे रखी है. दिस इज योर rule. So this is your sum and difference rule. Just see one example, ये आपको और क्लियर हो जाएगा. तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है सिंपल वाला, लेट्स से दिस इज x पावर 3 एंड प्लस x पावर
लेट्स से 5। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, y इक्वल टू दो टर्म्स का एडिशन है ना। इसको मैं fx ले सकता हूँ, तो इसको मैं gx मान सकता हूँ। इन दैट केस इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी तुम्हें पूछा गया फाइंड इट्स इंटीग्रेशन। ओके, सो इंटीग्रेशन अपन को फाइंड करना है, तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल y dx। वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 5 इंटू dx। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अगेन दो टर्म्स का एडिशन। अब बाय दिस रूल मैं इसको क्या कर सकता हूं, ये रूल से आई कैन एक्सप्रेस दिस इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू dx, बीच में जो भी है प्लस, कीप इट देयर प्लस, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 5 इंटू dx। तो अभी क्या हो गया, ये जो था इसको अपन ने इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया बाय यूजिंग दिस सम एंड डिफरेंस रूल। अब देखो ये तो क्या है सिंपल, ये अपन को आता है पावर रूल, ये भी अपन को आता है, इसको एज इट इज अपन नॉर्मल रूल लगा करके इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, तो अभी देखो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स पावर 3 + 1 मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस c1 एंड प्लस इसके लिए भी क्या लिखूंगा, एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 5 है तो पावर 5 + 1 मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 6 एंड प्लस कुछ नया कांस्टेंट इसके लिए c2। अब इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। और ये c1 c2 अपन को यहाँ पे कुछ मतलब तो है नहीं कि c1 की वैल्यू क्या है, अपन को तो क्या है एक सिंपल कांस्टेंट रखना है। तो बजाय c1 + c2 को मैं एक कांस्टेंट रखने के बजाय c1 + c2 उसके बाद एक नया कांस्टेंट उसको c ले लेता हूँ। सो दिस यू कैन राइट बेसिकली c1 + c2, बट इसको आप डायरेक्टली एक नया कांस्टेंट ले सकते हो। इन दैट केस यू कैन राइट दिस इज x raised to power 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस x raised to power 6 डिवाइडेड बाई 6, और इसको मैं एक नया कांस्टेंट, दिस कैन बी ए न्यू कांस्टेंट मान सकते हैं इसको लिखने के लिए, है ना। तो ये सिंपली आ जाएगा c। मतलब ये है कि आइडियली तो आपको ऐसे ही जाना है ना, we should go exactly in same manner, but because this system or this situation is simply equivalent to this, तो इसीलिए बजाय तुम्हें अगर ऐसा करना है तो c1 c2 रखने की बजाय एक सीधा c रख दोगे, that is also okay enough। this is also right, this is also right, there is nothing wrong, but it seems much better like, तो इसीलिए this is the final answer। तो सम एंड डिफरेंस रूल में जो भी अपन को फंक्शन दे रखा है बस उनको सेपरेटली डील करने का है अपन को। लेट्स सी more example। so मैंने कहा y is equal to, let's say this is x raised to power -3/8 plus 5x plus 9। ओके, सो दिस इज अवर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, तीन टर्म। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, तीनों टर्म्स का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन एंड बाय बेसिक रूल जो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आल्सो फाइंड इंटीग्रेशन, प्रॉब्लम इज फाइंड इट्स इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस विल बी व्हाट, आई कैन राइट इट इंटीग्रल y dx। इसको लिख सकते हैं y की जगह ये टर्म, सो दिस इज x raised to power -3/8 प्लस 5x प्लस 9 इंटू dx। अब वही सेम सम एंड डिफरेंस रूल से मैं इसको क्या एक्सप्रेस कर सकता हूँ, I can expand it, so this will be equivalent to integration of first term, that is x raised to power -3/8 into dx, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही रहने देंगे। so 5x dx इंटीग्रेशन प्लस 9 dx इंटीग्रेशन, राइट ना, क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म्स थी तो अपन ने तीन इंटीग्रेशन। अब तीनों को इंडिविजुअली अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया x raised to power -3/8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/8 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन 5, कांस्टेंट फैक्टर बाहर एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 और 9, और ये क्या होता है 9 इंटू dx, dx का इंटीग्रेशन अपन ने अभी देखा था x। And now instead of writing c1, c2, c3, I can simply write 1c, that is also enough। You can simplify it further one step। तो ये बचा अपना basically
8/5 x raised to power 5/8 plus 5/2 x square plus 9x plus c. So that is this rule. So ये है अपना सम एंड डिफरेंस रूल. यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन जो भी तुम्हें फंक्शन दिया गया है उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. मतलब 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, तो इंडिविजुअल टर्म का इंटीग्रेशन, दैट इज सिंपली योर सम एंड डिफरेंस रूल. सो लेट्स राइट इंटीग्रेशन ऑफ मोर फंक्शंस. Okay, so let's see more integrations. These are some formulas basically you need to remember. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अपन ने देखी और more like here. So let me write. I think it was 5th number. Integration. I can write integration of sin x dx. ये फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं है, तुम्हें याद रखने का है. तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x plus c एंड माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, ये उसका उल्टा, तो इसलिए माइनस यहाँ लगाने की बजाय अपन ने यहाँ, सो रिमेंबर दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज माइनस cos x प्लस c. नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज साइन x प्लस c. ओके, देखो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे sec स्क्वायर x dx. देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan x प्लस c. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, ये भी क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ दिस e पावर x dx, क्योंकि e पावर x का तो डिफरेंशिएशन भी यही होता है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन भी एग्जैक्टली यही हो जाएगा, तो e पावर x प्लस c. ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ हियर ln x dx, ये अपन आगे सॉल्व भी कर लेंगे. दिस कम्स आउट टू बी एक्चुअली x ln x माइनस x प्लस c. तो ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला हैं जो अपन को काफ़ी यूज़ होने वाले हैं. ट्राई टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम. एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर भी तो ऐसा हो सकता है ना कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ जाए अपना. इन दैट केस हाउ वी विल इंटीग्रेट इट एक्चुअली, राइट. सो in that case, for that purpose, we have, like, instead of having multiplication rule, we have this rule that we call integration by part. So next 11 is integration by parts rule. एक फॉर्मूला है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है. You need to remember it. Try to write it more number of times, then you will be like able to remember it. So यहाँ पर क्या होता है कि अगर दो फंक्शन का अपन को मल्टीप्लिकेशन दे रखा है fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, राइट. तो ये जो रूल क्या कहता है, इसको किसी को भी अपन एक फंक्शन मान लेते हैं, दूसरा तो सेकेंड फंक्शन हो जाएगा ना. तो एक फंक्शन को एज इट इज fx, ये यहाँ पे आप gx पे कोई भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग. हाँ, किसको कैसे लेना है वो थोड़ा सा भी अपन आगे एक्सप्लेन कर देंगे. सो दिस शुड बी लाइक fx इंटू gx. तो यहाँ पे फर्स्ट fx को अपन ने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर मस्ट. नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो मतलब डिफरेंशिएशन हो गया d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये जो सॉल्व होकर के आएगा उसका इंटीग्रेशन. सो दैट इज बेसिकली योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला. तो ये तुम्हें याद करना होगा कभी जब जरूरत पड़ती है मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए, देन दिस इज व्हाट यू नीड टू अप्लाई. फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन.
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो सॉल्व होकर के आया उसका इंटीग्रेशन, राइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे को करने का है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x इंटू डी एक्स। देखो इस फॉर्मूले का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये है कि अभी यहाँ पे दो फंक्शन है, बाद में कुछ ऐसा करना होता है कि एक ही फंक्शन बच जाए ये सब प्रोसेस के द्वारा, तो हमें फिर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए, है ना। तो इसीलिए क्या करना है कि हमें यहाँ से अब किसको फर्स्ट फंक्शन चूज करना है, किसको सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है कि कोई फंक्शन है जिसको लाइक रिड्यूस किया जा सके, मतलब खत्म कर सके, मे बी एक बार डिफरेंशिएशन करने से या मे बी दो बार डिफरेंशिएशन करने से, तो प्रीफरेबली अपन उसको फर्स्ट फंक्शन चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर सिचुएशन देखोगे तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो मैं फर्स्ट फंक्शन को अगर x को ले लेता हूं तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपली ये तो फंक्शन गायब हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन sin x का वहां पे कुछ बचेगा, तो अल्टीमेटली दिस कंप्लीट टर्म विल बी वन फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूं, इसको मैं सेकेंड फंक्शन ले लेता हूं, क्लियर ना। देयर विल बी, हाँ ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि दोनों ही, एक साइन है एक कॉस है, तो उसमें किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है किसको सेकंड फंक्शन लेना है वो अभी अपन आगे बताएंगे, वो एक डिफरेंट सिचुएशन रहती है, कैसे सॉल्व करना है। सो वी विल सी दैट एग्जांपल 2। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि दिस, ये मल्टीप्लिकेशन रूल बोल सकते हो, बट एक्चुअली प्रॉपरली वी कॉल इट इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल। फॉर्मूला इज दिस, कैसे अप्लाई करना है, लेट्स सी इट। तो यहाँ पे एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया, तो अब मेरे को क्या करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है। थोड़ा आइडिया कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, उसका लॉजिक ये है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसा लेना है कि जो थोड़ा डिफरेंशिएशन करने पर खत्म होने के जिसके चांसेस हैं या कम होने के चांसेस हों। क्योंकि देखो यहाँ पे देख सकते हो, x को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये 1 हो जाएगा एंड दैट विल बी लाइक फिनिश्ड। लेकिन अगर मैं sin x को ये लेता हूं तो इसको डिफरेंशिएशन करने पर भी वो बना रहेगा, x का इंटीग्रेशन करने पर भी वो x² हो जाएगा, तो मतलब लाइक स्टिल वी विल हैव 2 मोर टर्म्स, तो वहां पर चीजें आगे फिर से सिंप्लीफाई नहीं हो पाएंगी। इसलिए तो अभी इसको क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन x को ले लिया तो x एज इट इज, इंटीग्रेशन साइन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो d बाई dx ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज sin x dx। ये जो सॉल्व होकर के आएगा यहां से क्वांटिटी, इसका पूरे का इंटीग्रेशन, करेक्ट। देखो सॉल्व कर लेते हैं, x sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस x माइनस ये इंटीग्रेशन साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ x तो ये हो गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x तो ये हो जाएगा बेसिकली माइनस कॉस x इंटू डी एक्स। ये टर्म सॉल्व होकर के आ गई माइनस कॉस x, और dx ये वाला dx एज इट इज। अभी यहां पे देखो, देख सकते हैं कि ये 1 इंटू माइनस कॉस एक्स, इफेक्टिवली ये क्या होगा, एक फंक्शन में रिड्यूस हो गया। दैट इज द बेसिकली लॉजिक और अप्रोच फॉर दिस। अदरवाइज तो अगर दो फंक्शन है तो फिर से तुम्हें बार बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा, एंड अगर ये गलत फंक्शन चूज कर लिए तो मे बी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आप इंटीग्रेशन सॉल्व ही ना कर पाए, राइट। सो रिमेंबर दैट केस एक्चुअली। तो यहाँ पे ये हो गया, अब इसको देखो माइनस को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स cos x and this is equal to minus minus plus integration of cos x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, that is equal to minus x cos x, integration of cos x is plus sin x, and because indefinite so it's c, so this is your final result। Is it clear? तो यहाँ पे this is basically your formula of integration by part। Let's see more problems on it। Okay, so let's see one more example based on it। First thing is, let me explain it again। Here we are given multiplication of two function। तरीका इसका होता है कि एक पहले अपन को चूज करना होगा, तो हम किसी भी फंक्शन को
1 और इसको 2 मान सकती है। किसको 1 और 2 मानना है, उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक अपन ने बताया था कि हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इस प्रोसेस में जो ये दो फंक्शन है वो एक में रिड्यूस हो जाएं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम करते हैं और डिफरेंशिएशन ही एक पॉसिबल प्रोसेस है जो कि एक फंक्शन को लेसे अगर x है तो x का डिफरेंशिएशन फाइनली 1 हो जाता है, तो दैट्स बेसिकली गेटिंग ओवर। तो वो कुछ लॉजिक रहता है, बट मैंने आपको बताया कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, सो दैट्स वाई। तो आगे क्या होता है उसके लिए अपन आगे देखेंगे। अभी हमारे पास केसेस जो अपन ने यहाँ देखा पहले, वो भी केस ऐसा था कि जहाँ पे एक रिड्यूसिंग फंक्शन था, तो हम प्रीफरेबली उसको क्या करेंगे 1 चूज करेंगे, और दूसरा फंक्शन gx सेकेंड। तो अब इसको फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर ये जो सॉल्व होकर के आता है क्वांटिटी, उस पूरे का इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। थोड़ा सा लेंदी है, बट आप याद कर लोगे तो बिल्कुल भी आसान है, लाइक कोई कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें नहीं है। जैसे इसको अप्लाई करके देखते हैं इस एग्जाम्पल पर भी। तो यहां पर भी देख सकते हैं कि यहां पर अपने पास क्या है, दो फंक्शन है बेसिकली, दो लाइक x और e पावर x। तो यहां पे देख सकते हो, देखो अभी जो लॉजिक अपन ने बताया कि अब किसको फर्स्ट फंक्शन चूज करना है और कौन से वाले को सेकंड फंक्शन चूज करना है। तो देखो x को हम फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए यहां से कि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो ये खत्म हो सकता है। अगर मैंने ex को फर्स्ट फंक्शन चूज कर लिया तो ex का डिफरेंशिएशन यहाँ पे ex बना रहेगा, x का इंटीग्रेशन यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से अपने पास दो टर्म हो जाएंगी और इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो टर्म का इंटीग्रेशन बेसिकली, तो फिर से फर्दर अपन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट जाना पड़ेगा, एंड दैट विल बी लाइक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और तुम्हें आंसर भी लाइक नहीं आएगा। सो रिमेंबर दैट पॉइंट हियर एक्चुअली। तो अभी देखते हैं, तो डेफिनेटली अभी इस लॉजिक से आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इज x एंड सेकेंड इज आई कैन राइट e पावर x, राइट। तो अभी देखो इसको, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x e पावर x dx बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, d बाई dx ऑफ x, दिस into multiplication of second function or multiplication of integration of second function e power x dx, this whole term integration। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x का x e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, तो ये टर्म देखो सीधा सीधा गायब हो गया। e पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e पावर x, और ये क्या बचा, ये तो ये पूरा सॉल्व होकर के ये आ गया, एंड दिस टर्म इज एज इट इज dx, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं x e पावर x माइनस ये हो जाएगा e पावर x एंड प्लस c। तो यहां पे देख सकते हैं दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, करेक्ट। अब देखो ये दोनों एग्जांपल अपन ने देखे, उनमें फॉर्चुनेटली हुआ क्या कि इस स्टेप में अपने जो दो फंक्शन थे वो फाइनली एक फंक्शन में रिड्यूस होकर के आ जाते हैं, उसको अपन ने नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर दिया एंड वी आर गेटिंग द आंसर। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि मान के चलो आपने ये जो सिचुएशन यहाँ लॉजिक बताए थे वो कंसीडर किया, उसके बावजूद भी यहाँ पर फिर से अपने पास दो फंक्शन है, तब क्या होगा, नथिंग टू वरी। द पॉइंट इज दैट उस केस में आपको फिर से इस स्टेप में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा। कब तक लगाना होगा, जब तक कि ये सिचुएशन एक फंक्शन में रिड्यूस नहीं हो जाती, जो कि हो सकती है। कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं कि जहाँ पे कभी पॉसिबली रिड्यूस नहीं होता है, उसके लिए अपन कंडीशन देखेंगे। तो लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। इसका पॉइंट ये था, मतलब यहाँ पे जो तुम्हें याद रखने की वाली चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ एक ही बार में सॉल्व हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको 2 बार 3 बार 4 बार भी लगाना पड़ जाता है। सो दैट विल डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। लेट्स कंसिडर वन केस, देन इट विल बी क्लियर टू यू फर्दर। सो मैं मान लेता हूँ दिस इज लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू cos x, ओके।
ये एग्जांपल मान लेते कंसिडर कर लेते हैं। तो अब देखो ये तो लॉजिकली समझ में ही आना चाहिए यहाँ पे कि फर्स्ट फंक्शन अपन किसको कंसिडर करेंगे, एक्स स्क्वायर को डेफिनेटली, सेकेंड इज कॉस एक्स। ओके लेट्स सी, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब देखते हैं कि क्या ये चीज अपनी एक ही बार में काम करती है कि नहीं करती है। तो अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कैन आई राइट डायरेक्टली, बिकॉज ये तो अब आता है आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2x इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, लेट मी राइट इट स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो जाएगा cos x dx का इंटीग्रेशन एंड दिस कंप्लीट टर्म इंटीग्रेशन। ओके तो देखो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस यहाँ पे 2x और cos x का इंटीग्रेशन ये सॉल्व होकर क्या आएगा इनटू sin x और dx। तो यहां पे देख सकते हो कि अभी क्या आ गया अपने पास, फिर से दो टर्म आ गई। तो ये तो सॉल्व हुआ नहीं ना, नथिंग टू वरी। इस सिचुएशन में क्या करना है, सेम यहां पर भी क्या है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल है वो वापस आपको यहां पे लगाना पड़ जाएगा एंड देन फाइनली वी विल गेट आंसर। तो ये सॉल्व होकर के यहां तक आ गया प्लस ये टर्म। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जाएंगे। तो आप इसको साथ साथ कर सकते हो, नहीं तो सेपरेटली इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हो। सो लेट मी गो इट, सो इट्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस, अब देखो मैं इसको पूरे को इधर ब्रैकेट में रीजन में इधर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ 2 को बाहर ले लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट फैक्टर है, तो 2 एज इट इज बाहर ले लिया। ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स dx। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लेट मी सॉल्व इट सेपरेटली देन वी विल सब्स्टिट्यूट इट हियर, दैट विल बी इजियर केस एक्चुअली। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे बचा x साइन एक्स dx। इसको फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अब देखो फर्स्ट फंक्शन बाय दिस फार्मूला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स dx माइनस differentiation of first function that is equal to 1 integration of second function sin x dx this and complete integration। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आ गया, देखो x इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस cos x और यहाँ पे 1 है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस, और एक ये माइनस यहाँ पहले से है, आई कैन डायरेक्टली एडजस्ट इट, तो इट विल बी प्लस। और यहाँ ये बचेगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, तो ये माइनस के यहाँ एडजस्ट हो गया और दिस इज साइन कॉस, तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउ वी आर गेटिंग ओनली वन टर्म, तो इसको तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सीधा हो जाएगा सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉस एक्स और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन एक्स। तो अल्टीमेटली दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मैं क्या करता हूं, ये टर्म की जो वैल्यू है वो ये रख देता हूं। तो यहां से रिमेंबर इट, नो कंफ्यूजन। तो इस टर्म को मतलब क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू में यहां पे सॉल्व करके रख देता हूं। तो दिस इंप्लाइज ये एज इट इज रहा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 एज इट इज, और इसकी वैल्यू क्या आ गई है सॉल्व करके ये, तो ये कितना आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस दिस साइन एक्स, राइट। आई कैन राइट दिस स्टेप, लेट मी रेज इट हियर। तो अब देखो यहां से ये स्टेप सॉल्व करके ये आ गया, इस टर्म को अपन ने ये लिख लिया। ओके नाउ नेक्स्ट इज दिस एंड दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू दिस। अब इसको बजाय यहाँ पे बार बार चलने के अपन ने क्या किया, इस टर्म को सेपरेटली सॉल्व कर लिया। सो
इसका इंटीग्रेशन अपन ने यहाँ पे सेपरेटली इसको सॉल्व कर लिया। ये अब क्या कर रहे हैं अपन इस पार्ट का, क्योंकि अपन को ये सॉल्व करना था तो इसकी वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे रख दी तो ये आ गया अपने पास आंसर। तो दिस टर्म एज इट इज -2 और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके ये आ गया तो इसकी वैल्यू अपन ने ये रख दी। नाउ आई कैन राइट इट। तो यहाँ से इसको अगर मैं फर्दर यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू x² sin x माइनस ये मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस तो 2x cos x और ये -2 एंड दिस तो दिस इज -2 sin x और क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो 1c एंड प्लस c। सो दिस इज फाइनल आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंस बस क्या था, आई थिंक इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, you can call it lengthy actually because steps are more. The point is यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाने से काम नहीं हो रहा है। अपन ने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाया और इसके लिए फिर से अपन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना पड़ा। सो दैट मे डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल एक बार भी लगाना पड़ सकता है, 2 बार भी लगाना पड़ सकता है, बट दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू solve it. So this is your integration by part rule. Okay, so see one more example based on same rule, integration by part, and here this is the problem, integration of ex sin x dx. अब देखो इसमें क्या कोई ऐसा फंक्शन लग रहा है कि जिसका डिफरेंशिएशन करें और वो खत्म हो जाए? इट्स नॉट हेयर एक्चुअली। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितनी बार भी इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करो ऑलवेज वी विल हैव 2 टर्म्स। फिर प्रॉब्लम बचता है कि देन हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ फंक्शन। तो इसका देखो तरीका क्या है, रूल्स वही लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बट इसमें होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो फंक्शन है मैंने इसको लेट से I1 टर्म कुछ ले लिया। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म जो भी है ex sin x dx। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आता है कि कुछ फंक्शन आ जाएगा और मे बी एक बार इंटीग्रेशन करना पड़े, मे बी 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़े, एंड फाइनली व्हाट हैपन एक्चुअली ये जो टर्म है ना वो सेम रिपीट होकर के यहाँ पे आ जाती है प्लस माइनस में। एक्चुअली में ये ऑलवेज माइनस में आती है। तो दिस टर्म इसको इंटीग्रेशन करेंगे, एक नया टर्म यहां पे आ जाएगा एंड दिस सेम टर्म ऑटोमेटिकली दिस विल हैपन ऑलवेज। एक्चुअली ये सेम टर्म रिपीट होकर के यहां पे आ जाती है। इन दैट केस व्हाट हैपन एक्चुअली इसको अगर मैं i ले लिया हूं यहां पे ऊपर तो दिस इज i एंड दिस इज इक्वल टू fx माइनस दिस इज अगेन आई कैन ब्रिंग दिस टर्म हेयर तो ये हो जाता है अपने पास 2i एंड देन दिस इज fx और यहाँ से फाइनली अपने पास आंसर आ जाता है i मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू fx बाई 2 और प्लस ही अपन रख देते हैं। सो इस तरह से अपने पास अगर ऐसा सिचुएशन है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है लेकिन कोई भी फंक्शन रिड्यूसिंग नहीं है मतलब खत्म होने वाला नहीं है, उस सिचुएशन में भी अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन, लेट मी रिपीट इट, दिस इज द फंक्शन ओरिजिनली गिवन टू अस। यहाँ पे देखेंगे कि e पावर x sin x कोई भी रिड्यूसिंग टर्म नहीं है, इसको मैं डिफरेंशिएशन करूँगा फिर से e पावर x sin x cos x में कन्वर्ट हो जाएगा, बट कोई भी खत्म नहीं होने वाला है। तो कभी भी यहाँ पे जो टर्म आती है सेकंड वाली टर्म fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस दिस सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का मैंने अभी क्या बताया था कि उसका नॉर्मली जो काम रहता है वो ये है कि एक फंक्शन को ख़त्म करना, लेकिन अगर फंक्शन इस तरह के हों तो वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, बट स्टिल वी कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो। तरीका थोड़ा सा अलग है, just listen it carefully. What I am trying to say is that in this case or in such cases, इस तरह के सभी केसेस में होता क्या है
कि जैसे ये अगर पूरा फंक्शन इसका इंटीग्रेशन मैंने आई मान लिया है, तो आई का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं बाई पार्ट्स रूल तो कुछ फंक्शन आ जाता है यहाँ पे और फिर सेम टर्म रिपीट होकर के यहाँ आ जाती है। तो उस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, इसको आई ले लिए और इसको भी आई, तो इसको वापस इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। ये फंक्शन अपना बना रहता है। फिर यहाँ से आई अपन को चाहिए था, मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली ये फंक्शन डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस c। सो यू कैन सी दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉपरली, देन this explanation will make more sense to you. Okay, so let me write this is, again I am taking it I, तो अभी मैं इसको I ले लेता हूँ। so this is I equal to integration of e power x sin x into dx, right? अब बाई पार्ट्स रूल लगा लेते हैं, किसी को भी 1 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शन रिड्यूसिंग नहीं है। तो मैंने इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकेंड फंक्शन ले लेता हूँ। अभी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रूल यहाँ पे लगाते हैं तो देखो क्या आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स दिस into integration of sin x dx, this complete term further integration is this is इंटीग्रेशन बाई पार्ट रूल। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये कितना आ गया ई एक्स एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं अपन माइनस कॉस एक्स। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स ये आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, तो मैं उस माइनस को इस माइनस के साथ क्लब करके आई कैन राइट इट प्लस एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आ गया टर्म कॉस एक्स और इस पूरे टर्म का फिर से इंटीग्रेशन। क्लियर? तो अभी मैंने ये जो अपना टर्म था आई ओरिजिनल, ये इसको सॉल्व किया तो एक फंक्शन और प्लस कुछ और टर्म आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ लेट्स से I1, और क्योंकि यहाँ पे फिर से दो टर्म है, अगेन आई विल अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल। लेट्स अप्लाई। तो I1 अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये हो गया अपना पास e पावर x cos x dx। अगेन मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड। यहाँ पे कोशिश करना कि जो ऑर्डर में लिए थे वैसे ही उसको जो फर्स्ट फंक्शन को ही फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लेंगे। तो अभी यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल, तो e पावर x इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज cos x, राइट, इंटीग्रेशन एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x d बाई डी एक्स ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx and this complete term integration। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या आ जाएगा e पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sin x cos x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, ये इंटीग्रेशन साइन एज इट इज, इसको सॉल्व किया तो e पावर x आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x तो ये क्या आ गया देखो sin x इनटू ये वाला dx, this complete term into dx। now look at this problem। ये I1 था, I1 में को मैंने सॉल्व किया तो एक another function and plus this term। let me substitute this term here। okay, तो अभी मेरे पास ये I है तो मैं लिख सकता हूँ I equal to this e power x sin x dx। this term is equal to this, that is minus e power x cos x plus ये जो टर्म है I1 इक्वल टू दिस, I1 को सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, तो ये क्या बचा अपने पास, इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे e पावर x sin x माइनस ये वाली टर्म माइनस e पावर x sin x dx। now I think it should be clear to you, see this is my term I and exactly same term is repeating here coming back। I hope this is making sense to everyone, right? कि यहाँ पे ये टर्म से अपन चले थे और वापस समथिंग एंड सेम टर्म। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसी टर्म को मैंने आई ले लिया और इस टर्म को मैं वापस इधर ले आता हूँ, तो ये आई, ये टर्म पूरी मैंने आई ले ली है और ये टर्म भी आई है, ये माइनस के साथ है, तो इसको जब वापस इधर लाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा 2i। सो नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट इट बेसिकली दिस इज 2i
मतलब 2 टाइम्स आई की वैल्यू ये है ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, और ये आई टर्म के मैंने इधर ले आया तो ये 1i माइनस के इधर आएंगे तो ये प्लस, तो 2i हो गया, मतलब दिस इज i, सो 2 टाइम्स ऑफ दिस i इक्वल टू व्हाट, दिस टर्म। सो इसको मैं लिख लेता हूं ई पावर x cos x प्लस ई पावर x sin x। तो अब देखो मेरे को चाहिए क्या था, ये मतलब i, मतलब इस टर्म का इंटीग्रेशन, ये तो चाहिए था ना, तो i अपन को चाहिए, तो मतलब इसको 2 से उधर डिवाइड कर देते हैं। सो आई कैन सेंड दिस 2 टर्म हियर actually, and then finally we are getting answer. Let me write it here. तो इसको अपन सॉल्व करके मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज i इक्वल टू, ये आ गया माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 और c वो कांस्टेंट। सो दिस इज इंटीग्रेशन, इसी को यहां पे लिख सकता हूं, तो मतलब आ गया ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ गया। मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं, ई पावर एक्स बाहर लेकर के ये बचा अंदर साइन एक्स माइनस cos x this whole divided by 2 and plus c. So that is how we are getting integration of this type of problem also, कि मतलब जहां पे कोई भी टर्म रिड्यूसिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उस केस में क्या होता है, जहां से हम चलते हैं वही टर्म वापस आ जाती है। तरीका सिंपल सा ही है, इस टर्म को वापस इधर ले आओ, 2i हो जाएगा, बाकी एडिशनल टर्म तुम्हारे पास यहाँ मिल जाती है, 2 को इधर वापस डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट i मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस ओरिजिनल फंक्शन, i मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस ओरिजिनल फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस ओरिजिनल फंक्शन वी आर गेटिंग दिस टर्म एंड दैट्स योर प्रॉब्लम। तो दिस इज योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट rule. This is also important rule. You can call it little bit lengthy, but I don't think it's very difficult. थोड़ा याद करना पड़ेगा तुम्हें रूल को exactly, and then just remember it. We have solved few examples. Go through them properly कि क्या क्या step अपन ने exactly follow किए हैं. Remember those and apply when you are solving those like similar problems. Go exactly step by step. You will get the solution. So that is all about today's lecture. Let's continue next rules in the next lecture. Thank you so much.